Hi everyone, welcome back to my channel Speak English with Sonu. And today, English, English, why is English so important? Why is English so important in your career and in your life? Is Hindi not important? Or both languages are important. What do you think about it? So that's what today I'm now going to talk about in detail in this video. So don't miss it and watch my video till the end. Okay. So let's get started. And do you think that English is a hindrance to your growth, to your career? Do you think that? Well, English is not a hindrance to your growth. In fact, Hindi is equally important, right? But it's more or less related to inferiority and superiority complex rather than the state of being hindered. So this is the situation these days in our society, right? And in both conditions, this is not fair. This is not right. So why do you feel inferior if you don't know English? And why do you feel superior if you know it? Right? Well, and the simple answer is it is not only you who feel inferior or superior, right? There are many more people who feel inferior if they don't know English, right? And the reason why you feel inferior is because somebody around you who feels superior if he or she knows it, right? And the feeling of this inferiority complex and superiority complex is not at all accepted, whether you don't know English or you know English, right? So it is just a language, right? Don't give that much importance to just a language. There are many more things that you need to work on. And in my previous videos, I already mentioned that in order to improve your communication skills, you need to work on many things. It is not only the language that you're going to work on, and it's not going to help you if you do not know general knowledge. You don't have general knowledge. You don't have the knowledge of the content that you are going to speak on, right? You should have a presence of mind. You should have your common sense, right? You should have a good command over your language skills along with your content and general knowledge, your common sense. There are many more things that you need to work on, right? Yes, and I'm not saying that you shouldn't master the language skills. No, it's not like that. You should, of course, go ahead and do that. You work on that. But it totally depends on your need and your long-term goal. So if your long-term goal is to become a successful public speaker, then of course you need that, right? And you should go ahead and work on that, right? Yeah. But you should, but you will not get an environment. That's a big challenge, right? Or और डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन भी होता है जो वो बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप इंग्लिश सीखने चलेंगे उस समय आपको डिमोटिवेट किया जाएगा आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी वो तो बहुत बड़ी चैलेंज है और डिमोटिवेशन इज द सेकंड राइट और एनवायरनमेंट आपको मिलेगी कैसे क्वेश्चन ये है आपको पता है हैव यू एवर रियलाइज्ड दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पीक गुड इंग्लिश आपको पता है ये चीज फाइंड इट आई गिव द आंसर ओनली 10%. 10% लोग ही हैं जो सही अंग्रेजी बोल पाते हैं.
और उसमें से भी 10% में से भी मैक्सिमम लोग सेलिब्रिटीज हैं या फिर पॉलिटिकल लीडर्स हैं। जैसे में शशि थरूर जी हैं, इस तरह के लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, वो या फिर सेलिब्रिटीज हैं, या अगर आम लोग हैं, आम जनता है, तो वो कहीं टीचर है या कोई ट्रेनर है या कोई अपना बिजनेस स्कूल चलाते हैं, वहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है या फिर प्रिंसिपल है या कुछ है, राइट, या इंग्लिश का स्पेशलिस्ट है वहाँ पर, तो या प्रोफेसर है, तो ऐसे एजुकेशन लाइन में है, तो ये यहाँ से आपको इंग्लिश इन्वायरमेंट मिलेगी नहीं, राइट। अगर आप अच्छे स्कूल में आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है तो आपको मिलेगी नहीं। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो स्पेशली जिनको माहौल नहीं मिलती है, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लिखे होते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, राइट। उन्हें माहौल नहीं मिलती है बिल्कुल, उन्हें कोई ऑप्शंस नहीं है वहां पे। उन लोगों के लिए मुझे बातें करना कि माहौल, थिंक इन इंग्लिश और स्पीक इंग्लिश, थिंक थिंक इन इंग्लिश, ये सारे बात मुझे मतलब लफाजे हटाइए, आप जमीन से बात कीजिए, जमीन से जुड़ी हुई बातें कीजिए। तो आप उन लोगों को आप बता रहे हैं ना जिन्हें इंग्लिश का सही से, मैं क्या बताऊं, ABCDEFGH जो होता है ना, लेटर्स, अल्फाबेट, ये सब से थोड़ा बहुत वर्ड्स और सेंटेंसेस के अलावा वो कुछ नहीं जानते, उन्हें समझ ही नहीं आती, राइट। और इसीलिए मैं हिंदी में ना बोल करके इंग्लिश में बोलता हूं, ताकि मुझे कोई भी वीडियोस देखें इसे, राइट, तो उन्हें एक माहौल मिल पाए कि एटलीस्ट 10 मिनट का हो या 12 मिनट का हो, 15 मिनट का मेरा वीडियोस हो, उससे कम उनके कानों में इंग्लिश की वर्ड्स और सेंटेंसेस उन्हें सुनाई दे, और उन्हें कोशिश करें समझने की, राइट। हाँ, अब बिल्कुल ही मेरा वीडियोस उनके लिए नहीं है जिनको सिर्फ ABCD के अलावा और कुछ नहीं आता, तो उनके लिए तो नहीं है, क्योंकि उनका कुछ हो भी नहीं सकता। वो जब तक थोड़ा सा और थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करेंगे तभी ये मेरा वीडियोस काम आएगा। हाँ, बट ये है कि जिनको थोड़े बहुत आती है, जिनको सेंटेंसेस, वर्ड्स, ये सब थोड़ा पता है, जिनको थोड़े बहुत इंग्लिश से रिश्ता है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा। So, and you will find people in society who will demotivate you, right? They will say that why are you making an effort to learn English, right? uh, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये इंग्लिश को एक्चुअली में हम लोग इसको ब्रिटिश से थोड़ा रिलेट करते हैं, और ये थोड़ा जो पॉलिटिकल थॉट है ना, इसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एंड एक्सेप्टेबिलिटी इज अ बिग चैलेंज, और अभी तक यही होते आ रही है। हमें ऐसा लगता है कि हिंदी सप्रेस होती जा रही है, हिंदी हमारी भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, और हिंदी खत्म होते जा रही है धीरे धीरे, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा आपको कैसे लगता है कि ऐसा हिंदी की इंपॉर्टेंस कमते जा रही है? और नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इंग्लिश नहीं बोलता कभी, मैं कभी इंग्लिश नहीं बोलता, या मैं कहीं भी बाहर निकलता हूँ तो इंग्लिश तो नहीं बोलता, मैं कभी इंग्लिश नहीं बोलता। मॉल में गया या फिर कहीं कहीं भी पब्लिक प्लेस में गया या फिर किसी किसी जगह भी गया, जब तक सामने वाला इंग्लिश नहीं बोलता है तब तक, राइट। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट यूज टू इम्प्रेस समवन, इट इज यूज टू एक्सप्रेस, राइट, जैसे कि हिंदी में होता है। इफ यू नो हिंदी, that's good, but if you know English too, that's your value addition. This is my thought, right? This is your value addition and nothing else. कोई इसमें स्पेशल चीज नहीं है। आप इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हिंदी जानते हैं तो भी अच्छी बात है। आपको मेन जाना कहाँ है? अगर जैसे लोग कहते हैं कि हाँ क्यों यार इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, या आपको भी अगर लगता है मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ इसमें, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है ना, तो फिर आप इसमें काम करना शुरू करते हैं, फिर वहां बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और एक्सेप्टेबिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो हम बचपन से देखते रहते हैं, क्योंकि जब पहले हम जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि नहीं यार अभी तो चलो ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हम इसको देख लेते हैं, हम ग्रामर पढ़ लेते हैं, बाकी स्पोकन इंग्लिश पे हम ध्यान नहीं देते, और जब बाद में हमें
कॉलेज में जाने के बाद जब हमें समझ नहीं आती है, फिर हमें लगता है यार कि अब तो दिक्कत हो रही है, फिर वहाँ हमारी काम बढ़ जाती है। और आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं पब्लिक प्लेस पे, राइट, तो वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम, वहाँ पे लोग सोचते हैं ना कि यार क्या देखो अंग्रेज अंग्रेज का बच्चा, इस तरह की बातें, ये डिमोटिवेशन है। और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप जब हिंदी बोलते हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू। मैं इंग्लिश बोलता हूँ या मैं अपने बच्चों को इंग्लिश समझाऊँ या ना समझाऊँ, व्हाई आर यू गोइंग टू डिस्टर्ब मी? ये पता नहीं हम इसको नेशन से क्यों रिलेट करते हैं इन चीज़ों को। जब कोई भी अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करता है तो सिंपली उसका यही मीनिंग है कि उसके अपने करियर में, मतलब जो बच्चे हैं उनके अपने करियर में एटलीस्ट एक काम तो आसान हो गया। मैं जो मेरा थॉट है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ रहा है, राइट, और घर पे भी अगर हम इंग्लिश की माहौल अगर बच्चों को दे रहे हैं, हिंदी तो हमारी ब्लड, हिंदी सीखने की जरूरत नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। तो इंग्लिश के लिए तो हमें एफर्ट डालने, ये सॉरी, हिंदी के लिए तो हमें एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, राइट। जो एफर्ट डालने की जरूरत है वो है इंग्लिश। तो अगर बच्चा से ही अगर इंग्लिश का माहौल हम प्रोवाइड कराते हैं चिल्ड्रन को स्कूल के माध्यम से या अपने फैमिली में भी, तो इसका सिर्फ मतलब यही है कि एटलीस्ट बच्चों के अपने करियर में एक काम तो आसान हो जाएगा ना, उसे बाद में ये काम तो नहीं बढ़ेगा ना, एटलीस्ट उसे बहुत प्रेशर आने वाले हैं आगे। जो हमारे पास जो ये प्रेशर है अपने करियर अपने फ्यूचर को लेके, उसके कई गुना ज्यादा उसको प्रेशर होगा झेलना बच्चों को। अब उसमें भी अगर इंग्लिश ना सीखे तो वहां पे फिर जब वो, मतलब व्हेन ही विल बी मैच्योर, तो अगेन एक एडिशनल काम उसके लिए बढ़ जाए, राइट। तो कम से कम एटलीस्ट ये तो है कि हिंदी पहले से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहले से ही अच्छा रहेगा, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बस सिंपल लॉजिक यही है। और शायद इसीलिए पेरेंट्स इंग्लिश पे इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं बच्चों के लिए, राइट। हाँ, लेकिन ये अगर कोई ये समझे कि हाँ इंग्लिश बोल करके मैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने वाला हूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू डू समथिंग, राइट, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। क्योंकि वो जमाना चली गई जब एक टाइम था जब 5 लाइन इंग्लिश बोलने के बाद ये समझी जाती थी, हाँ भाई इंटेलेक्चुअल पर्सन, नो, देयर इज नथिंग स्पेशल। इंटेलेक्चुअल और इंटेलेक्ट, इनमें कोई रिलेशन नहीं है इंग्लिश और हिंदी का, राइट। और इसे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम इसलिए है ना, क्योंकि हम इसे नेशन और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश से इसे हम रिलेट करते हैं, राइट। दैट्स द मेन चैलेंज, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते इसे। कभी ग्रामर में फंसे रहते हैं, कभी माहौल नहीं मिल पाती, तो कभी कुछ कभी कुछ। और ये ग्रामर, इनके बारे में बहुत आपको मिलेंगे बोलने के लिए कि ग्रामर मत पढ़ो, माहौल अ, से होगा। तो अगर माहौल से ही होनी होती और इतनी सब सही होती तो अभी तक तो हम इंग्लिश सीख गए होते। और जैसा कि मैंने बताया 10% ही लोग हैं जो सही इंग्लिश बोल पाते हैं, तो आपको माहौल मिलेगी कैसे? और जो माहौल मिलेगी वो तो आपको ऐसे ही मिलने वाली है, जिसमें जिसमें ये कहा जाता है ही डोंट नो, शी डोंट नो, ही कम ही गो। सो ये ऐसे इंग्लिश बोलने वाले तो बहुत होते हैं। और इस तरह की माहौल अगर चाहिए तो हर जगह माहौल है, आप जहाँ भी है वही माहौल है इस तरह की, राइट। बट कुछ मतलब तो बननी चाहिए ना ये चीज़। और देखिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें माहौल नहीं मिलती है, राइट। तो वहां पे आती है ग्रामर का बहुत प्राइमरी रोल होता है वहां पर। ग्रामर आपको बहुत हेल्प करता है, ग्रामर आपको हेल्प करेगा मिस्टेक्स को रिड्यूस करने में। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पर आपको धीरे 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 जब आपको अच्छी कंट्रोल हो जाती है ग्रामर की, सी यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, दैट्स वन थिंग,
right? But you have a good control of it while you speak and write, that's a different thing. Both are two different things. You should have a good control of it. ये चीज होनी चाहिए. तो अगर आपकी अच्छी कंट्रोल है तो बहुत कम चांसेस है कि आप मिस्टेक्स करेंगे. मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग मिस्टेक्स नहीं करते हैं, ग्रामर पढ़ने के बावजूद भी करते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक मिस्टेक्स, आपके वर्ड ऑर्डर, ये सब तो सही होनी चाहिए ना. ये सब तो बेसिक मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. आपकी वर्ड ऑर्डर सही होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले को अर्थ पता चले, ठीक है, उसकी सही से आपकी मीनिंग कम्युनिकेट हो अच्छे से. तो ये तो होनी चाहिए, राइट. और इसे हम कहीं ना कहीं इसको वेस्टर्न कल्चर से जब रिलेट कर देते हैं ना तो और बड़ी परेशानी हो जाती है, राइट. तो ये अच्छा, ये एक मजे की बात ये भी है कि वेस्टर्न कल्चर हमें बस स्पेशली दो ही चीज में दिखाई देती है मेरे हिसाब से. एक, जब इंग्लिश की बात की जाए तो वहां पे एक दिखाई देती है, और दूसरी जब हम महिलाओं के अधिकार और उसकी फ्रीडम, उसके हक की बात करते हैं ना, तब भी हमें वेस्टर्न कल्चर वहां पे दिखती है कि ये वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए ऐसा बात होती है. उसके पहनावे वहनावे, उसके कपड़े, इन चीजों पे बात करें तो वेस्टर्न कल्चर आती है. बाकी लाइफ में सारी चीज बस चंगा है, सब सेटिस्फाइड है. फ्रॉम द टाइम यू गो टू योर टॉयलेट टिल द टाइम यू गो टू योर बेड, इस बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज जो होते हैं ना डेली, उसमें से बहुत एक्टिविटीज ऐसे हैं जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है. वहां हमें कोई परेशानी नहीं होती है. हमारा उठना बैठना, खाना पीना, आजकल तो खैर, आजकल तो अपार्टमेंट में फ्लैट्स चलते हैं, ठीक है. बाकी जाना आना, घूमना फिरना, कहीं भी मॉल चले जाए या कहीं भी चले जाइए, आप देखिए वहां पर इतना नज़ारा, ठीक है. उसके बाद फिर हमारा जो है, कार्स की बात करें, कार्स में भी देखिए आप, जापानीज फ्रेंच कार चलती है. इंडियन कार्स तो उसका सेल देखिए ना, आप सेल को कंपेयर कीजिए इंडियन कार्स का और जो फॉरेन कार्स है उसके, आपको फर्क दिखेगा, बहुत बहुत फर्क दिखेगा. जापानीज कार्स, फ्रेंच कार्स, इन सब का देखिए सेल कितना ज्यादा होता है. इंडियन कार्स का फिर भी बहुत कम है उससे. और लिकर की बात करें तो भी देखिए, देसी दारू, फॉरेन इंपोर्टेड, वो चलती है. तो थिंक अबाउट इट. वेस्टर्न कल्चर, ये सब सारी जो चीज है ना, ये सब बेकार की बात है, ठीक है. आपका जो है एक प्राइमरी, आपका एक गोल होता है, आपका जीने का एक पर्पस है, प्राइमरी गोल है. उसमें आपका इंग्लिश बस एक साधन हो सकती है, एक भाषा हो सकती है जो आपको कुछ हद तक आपको हेल्प करेगी. हर जगह आपको हेल्प नहीं करेगी. आपको मेन जो हेल्प करेगी वो आपका बस सिर्फ जो है वो आपका इंटेलेक्ट है, वो आपकी कंटेंट है, वो आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है, वो आपकी अपनी चेतना है, यही सब है. बाकी तो इंग्लिश बस एक माध्यम सी है. हम इसे बोल के भी बहुत सुपीरियर नहीं हो सकते और नहीं बोल के भी हम बहुत इंफीरियर नहीं हो सकते. दैट्स इट, राइट. और वेस्टर्न कल्चर की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ तो इंडिया में ऐसे बहुत लोग जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, बट आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे यहाँ बिजनेस कितना होता है. जस्ट फाइंड डेटा, देन यू टॉक अबाउट इंग्लिश. वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे यहाँ बिजनेस का क्या सिचुएशन है. उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में अगर यहाँ का, हमारा तो सिविक सेंस इतना जीरो है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के थॉट रखते हैं ना, उनको अगर वेस्टर्न कंट्रीज में भेज दिया जाए बिना स्ट्रेस का, उन्हें कहा जाए कि नहीं एकदम बिल्कुल बिंदास जाओ, बिंदास रहो, कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं, तो पता है आपको कि 1 घंटे के अंदर कितनी चालान कटेंगे उनकी. यस, जस्ट बिकॉज ऑफ जीरो सिविक सेंस. ना हमें ट्रैफिक सेंस पता है, ना हमें थूकना पता है, कहाँ थूका जाए कहाँ नहीं. तो ये सारी चीजें, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ. यस, so it's not about the Western culture, it is just a language, and that's it. Yeah, so this is just a language, right? So don't relate it to any culture, Western culture, or don't try to relate it to the nation and something else. It is just a language. If you need it, you just learn it. If you don't need it, don't learn it. That's it. Take it easy. Yeah.
And when we talk about the importance of the language, then I would like to tell you here that Article 343 of the Constitution of India stated that the official language of Union is Hindi in Devanagari script, with the official use of English to continue for the next 15 years from 1947, right? And later on, the constitutional amendment, the Official Language Act 1963, allowed for the continuation of English alongside Hindi in the Indian government indefinitely till the time legislation decides to change it. And who are you to ask me what to learn and what not to learn, and what is important, what is not important? Come on. I am matured enough to decide what is right and what is wrong for me, right? So don't impose your thought. And for your kind information, I have heard many people saying that मातृभाषा और राष्ट्रभाषा इस तरह की बातें, national language. So I just want to tell you here that Hindi is not our national language. Do you know that? The Indian Constitution has not given any language as a status of national language so far. I don't know our future. Right? So don't quote that Hindi is our national language. Read something, get an idea. सिर्फ 5 लाइन इंग्लिश बोलने से थोड़े ना काम चलता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है. Yeah. So I hope that I have shared many things with you, and I hope that you will like this video, right? And in my coming videos, I will start conducting classes for English, so you will get to know. All right. So thank you so much for your time, and thanks for watching my video. Thank you. Take care. Bye bye.